So today we'll start the 3.1. It is all about the classification and the nomenclature of organic compounds. सर आपकी स्क्रीन नहीं दिखती है। किसी को भी नहीं दिखती है? नहीं हेलो, सर, मुझे दिख नो सर, इट्स विजिबल। किसी को भी नहीं दिखती है या किसी इसमें से किसी को दिखती है क्या? सर मुझे दिख रही है। अच्छा, नो सर। तो अच्छा, तो जिसको दिखती है इसका मतलब क्या है? प्रॉब्लम एक्चुअल में आपका नेटवर्क का इशू हो सकता है। ये तो कुछ स्टूडेंट को स्क्रीन दिख रही है, अभी दिखती है। सर आप फिर से स्क्रीन शेयर करो। ओके, अभी दिखती है। यस सर। यस सर। So today we start the 3.1, that is the classification and the norm. So in this going to study the some of the important and basic concept regarding the organic compounds and classification of the organic compounds, its IUPAC nomenclature. Along with the IUPAC nomenclature, some of the basic, that is common nomenclature, also we are going to study. In the nomenclature, some part of the mono and some part of the bifunctional aliphatic compounds are also going to be studied. Priority order is important. That priority order is also we are going to study. When the more than one functional groups are in one structures, then at that times how to give the nomenclature of that particular organic compounds. For that purpose, the priority order is required. So these priority orders are already decided by the IUPAC. On the basis of those IUPAC priority orders, we can give the IUPAC nomenclature to that particular compounds. So each and every terms, each and every words are according to the IUPAC nomenclatures. So we are going to study the IUPAC nomenclature of the alkanes, alkenes, alkynes, haloalkanes, alcohols, ether, aldehyde, ketones, carboxylic acid. Okay, carboxylic acid derivatives means the acid halide, ester, anhydride, amide, nitro compounds, nitriles, amines, including their cyclic analogues. So these are the important terms we are going to study. So some part visible. स्क्रीन दिख रही है ना आप? Sir, your voice is breaking. स्क्रीन दिख रही है क्या आपको? Yes, sir, screen is यस visible, सर। but your voice is breaking. Okay. Of the organic compounds, some basic concepts are there. I think you already learned this basic concept regarding the carbon. Carbon has
Carbon can share the 2 4 bonds. Okay, carbon atom is not possible to make more than 3 bonds. These are the basic. ये आपको सारी चीजें पता होंगी. अब दूसरी बात देखिए और बेसिक क्या है कार्बन के बारे में कि कार्बन का जो स्ट्रक्चर, अभी कार्बन का जो फर्स्ट वाला पार्ट है, इन द फर्स्ट पार्ट फर्स्ट वाला जो कार्बन हैविंग द 4 सिग्मा बॉन्ड्स. ओके, केस कार्बन इज हैविंग द टेट्राहेड्रल स्टेप्स. ओके, यहाँ पे जो है पाई बॉन्ड 0 है. हाइब्रिडाइजेशंस तो हम जनरली परसेप्शन क्या यूज करते हैं कि जहाँ पर ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल्स, ओके, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, उस टाइम में हम उसको sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम बोलते हैं. और बॉन्ड एंगल होता है 109.28 डिग्री. ओके, एंड नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल 6. तो ये बेसिक कंसेप्ट है रिगार्डिंग द कार्बन के बारे में. आई होप ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी कि अल्किन के बारे में sp2 हाइब्रिडाइज बोलते हैं, अल्काइन के बारे में sp हाइब्रिडाइज बोलते हैं. ओके, एक कार्बन पे 2 डबल बॉन्ड्स है. ओके, तो उस टाइम में भी उसको sp बोलते हैं. शेप है उसका, ये बेसिक थिंग्स है. आई होप दैट यू ऑल नो ऑल दिस थिंग्स. ओके, आगे बढ़ते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. Carbons. So one carbon is attached with the how much number of carbon atoms or how much number of alkyl groups. That number of alkyl group decide the nature of that carbon atoms. If carbon attached with the one alkyl group or one carbon atoms, at that time it is primary. If carbon atom is attached with the 2 carbon atoms or 2 different or same alkyl groups, at that times that carbon is called as the secondary carbon atoms. If carbon attached with the 3 different carbon, same carbons or 3 different alkyl groups, same alkyl group, at that times that carbon is tertiary. And when carbon having the 4 different group or 4 same groups attached with that particular carbon atoms, okay, means all the valencies of the carbon atoms are fulfilled by the another carbon or alkyl groups, at that time that carbon is called as the quaternary carbon atoms. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी. ये वर्ड हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं के अंदर. ओके, तो इसका मीनिंग सिंपल होता है, एक कार्बन एक को अटैच है. हम ये वर्ड नाइट्रोजन के बारे में भी यूज करते हैं. ओके, नाइट्रोजन भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी होते हैं. ओके, तो सिंपल आप ध्यान में रखिए, तो नोटेशन यूज किया गया है वो नोटेशन सिंपली इसलिए सिंपली उसमें मीनिंग ये है कि वो जो पर्टिकुलर आइटम जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो आइटम्स कितने ग्रुप से अटैच है उस पर डिसाइड होता है कि उसका नेचर क्या है. प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, ओके, क्वाटरनरी. अब कार्बन के बारे में क्वाटरनरी तक बात करते हैं, अमाइंस के बारे में टर्शरी तक बात करते हैं. जनरली अमाइंस और कार्बन के बारे में ही जनरली ये जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी वाला वर्ड यूज होता है. तो ये बेसिक है. प्लेन, 1 मिनट, प्लेन जा रहा है ऐसा. अब बात करते हैं एक्चुअल ऑफ ऑर्गेनिक. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्लासिफाई करते हैं ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड के अंदर. ओपन चेन कंपाउंड 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड. क्लोज चेन कंपाउंड्स आर आल्सो दैट इज होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक. होमोसाइक्लिक्स आर अगेन 2 टाइप्स, असाइक्लिक, alicyclic or aromatic, and aromatic again 2 types, that is benzonoid and non benzonoid compounds.
Heterocyclics are of two types, that is the alicyclic and the aromatic compounds. So these are the broadly classifications of the organic compounds. Okay. Examples are given to whom homocyclic or the heterocyclic. Homocyclic means the having the cyclic chains, okay, and the cyclic chain, if there is one heteroatoms in that cyclic chain, okay, at that time heterocyclic means the जो रिंग होती है, रिंग के अंदर कोई हेट्रो आइटम आ जाता है. जनरली हेट्रो आइटम्स कौन से हैं? सबसे ज्यादा यूज होने वाले हेट्रो आइटम्स है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर. ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं. अभी तो आपके जो एफवाई में तो मैक्सिमम आपको कंपाउंड्स स्टडी जो मिलेंगी वो ऑक्सीजन, ओके, नाइट्रोजन और सल्फर की ही मिलेंगी. उससे ज्यादा कोई हेट्रो आइटम ज्यादा यूज होता नहीं कि तो इनकी ज्यादा कैबिन. अब व्हाई इट इज मोर यूजेबल इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? बिकॉज इट हैविंग द टेंडेंसी टू फॉर्म द कंपाउंड्स. ओके, इनकी प्रॉपर्टी है कि ये ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड्स तैयार करते हैं. बाकी जो आइटम्स है, ओके, अदर, तो उनकी प्रॉपर्टी नहीं है कंपाउंड्स तैयार करने की, तो उनके रेयर कंपाउंड्स मिलते हैं. ओके, नेक्स्ट, नेप्थैलीन किसको बोलते हैं? अगर जो किसी को पता नहीं है, एनीवन हैविंग द some poor basic concepts, so that particular students can learn it properly, okay, right, practice it more and more times so that you can build up your basic concepts. Okay, so these are the basics. Benzene, everyone, every students of the chemistry know the benzene, every student of the chemistry know the naphthalene. Okay, अगर जो किसी को पता नहीं है तो वो थोड़ा सा अपने कंसेप्ट्स को डेवलप करिए, इसको बार बार लिख कर देखिए कि तो ये बेसिक्स है. तो cyclic compounds having the conjugated double bonds, okay, that is the benzoate compound, that is the benzene. Then it is the next is the naphthalene. Biphenyl compounds, okay, anthracene, anthracene भी है इसके अंदर, it is the biphenyl compounds. अंडरस्टैंड करना है ये ओके, ये कंपाउंड जितने भी ऊपर दिए वाले हैं, कौन से कंपाउंड्स देखिए यहाँ पर, 1 मिनट, ये जितने कंपाउंड्स आपको दिख रहे हैं, अब इसको बेंजोनाइट क्यों कहा गया है? उसका रीजन है कि इसके अंदर जिन रिंग दिख रही है सबके अंदर. कोई भी कंपाउंड को देखो, बेंजीन रिंग, बेसिक जो स्केलेटन है उसके अंदर बेंजीन रिंग है, तो इसको बेंजोनाइट कंपाउंड्स बोलते हैं हम लोग. ओके, अब बात करते हैं, अब नॉन बेंजोनाइट में कौन सा आता है? नॉन बेंजोनाइट में अजोलिन आता है. ओके, अजोलिन स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि साइक्लिक रिंग के अंदर कोई ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एटम आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं. सिंपली अगर जो स्ट्रक्चर है, देखिए, सिंपली अगर जो स्ट्रक्चर, तो ये हो जाएगा कंपाउंड. इसके अंदर कोई भी एटम्स नहीं है. स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि आपके? समझने Yes, के लिए sir. आपको मैं, हाँ, अब के अलग अलग तरीके हैं. ओके, यही स्ट्रक्चर है, इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं आप. साइक्लिक रिंग. अब इसके अंदर आपको टोटल कार्बन आइटम्स दिखते हैं. ओके, तो अगर जो इसमें कार्बन आइटम्स में से एक
साइक्लिक रिंग के अंदर से अगर जो हम कोई एक कार्बन आइटम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, जैसा कि यहाँ पर रिप्लेस की, इसकी जगह पर मैंने नाइट्रोजन आइटम लगा दिया, तो ये बन जाएगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। यहाँ पे मैंने कोई और कंपाउंड लगा दिया हेट्रो आइटम, तो साइक्लिक चेन के अंदर कोई तो लगाते हैं हेट्रो आइटम्स इज अदर देन द कार्बन्स, लगाते हैं रिंग के अंदर, तो हम उसको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ओके, को 5 मेंबर में फ्यूरॉन बोलते हैं, सल्फर अगर जो आ गया तो थायोफेन बोलते हैं, नाइट्रोजन आ गया तो पायरॉल बोलते हैं, पिरिडिन आ गया तो नाइट्रोजन आ गया तो पिरिडिन बोलते हैं। पिरिडिन इज सिमिलर टू दैट ऑफ द बेंजीन। ओके, कैसा एरोमेटिक नेचर के बारे में बताए तो बॉन्ड लेंथ के बारे में देखा जाए तो डिफरेंट सारे चीजें हैं अलग अलग, लेकिन इट इज लुक लाइक सिमिलर लाइक द बेंजीन रिंग पिरिडिन। उसके बाद एक दूसरे सीरीज के अंदर डिफरेंट मास नंबर अगर जो है तो उसको हम होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। ओके, 14 यूनिट्स का 14 एटॉमिक मास का डिफरेंस है तो उसको हम जनरली बोलते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल एक CH4 है, ओके, और दूसरा CH3 है, एक है ओके, दूसरा है CH3, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है 14 एटॉमिक होना चाहिए, आपको इसलिए बता रहा हूँ होमोलॉगस सीरीज हम। उसके बाद देखिए यहाँ पर होमोलॉग है CH4 CH2 डबल सीरीज है अल्केन का CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n। ओके, हेलोजन है तो उसका फॉर्मेशन अलग है, तो सब करना है। क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स कहाँ पे आता है कि फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन वो कर नहीं पाते, तो फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन आपको होना चाहिए। ओके, अब आज आप करते बैठकर फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन अगर जो किसी का है कंप्लीट तो फिर भी वो भी रिवाइज करिए। क्या फंक्शनल ग्रुप का कि कौन सा ग्रुप आने के बाद उसको क्या नाम दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर जो कोई स्ट्रक्चर के अंदर OH ग्रुप आ गया, OH ग्रुप, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अल्कोहलिक ग्रुप। ओके, किसी के अंदर ROR टाइप का ग्रुप है, सॉरी यहाँ पर क्या है, RO CH3O CH3, इस टाइप के ग्रुप हम शब्द ग्रुप बोलते हैं। HCHO, H की जगह पे कुछ भी आ सकता है, CH3 कोई भी ले सकते, कोई भी अल्किल ग्रुप ले सकते हैं आप। ओके, RCHO इंपॉर्टेंट है इसके अंदर का, तो इसको बोलते हैं हम एल्डिहाइड ग्रुप, याद रखिए इसको। CH3C ये कीटोनिक ग्रुप है। ओके, उसके बाद ये ओके, इस तरह ग्रुप में क्या होता है, RC11O OR O NH2 अमाइड ग्रुप। ओके, उसके बाद ये नाइट, आप ग्रुप का भी ध्यान में रखिए, तो दीज आर द ये कौन से है, ये बेस होना चाहिए कि कौन स्ट्रक्चर क्या है। आप ये भी एक काम करिए एज अ होमवर्क, जिसको पता है वेरी गुड, लेकिन जिसको नहीं पता है उसने थोड़ा सा मेहनत करके वापस से आपके जो है
बेसिक जो कंसेप्ट है उसको डेवलप करिए रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखा है कि वो क्लास से क्लास आगे बढ़ते हैं लेकिन बेसिक फंक्शनल ग्रुप उनको याद नहीं रहते हैं। ओके, इसलिए आपका फर्स्ट ईयर है, इसी में अगर जो आपने आपके बेसिक फंक्शनल ग्रुप को डेवलप कर लिए तो आपको आगे चल के हम जितना पार्ट हमारा हुआ है ये लेक्चर रिकॉर्डेड है सकते हैं। ओके, बेसिक थिंग्स इसके अंदर, इसको आप एक बार रिवाइज करिए, तो हम कल कवर करेंगे।